Hello dear student of class 12th, welcome back to your physics concept class. And we are here to discuss a topics of physics. And you know that this is your fifth lecture of unit 3rd named as the magnetism. In our last lecture, that is in lecture 4, we have been discussed about the topic Biot-Savart's law. And in this particular class, we are going to discuss about the applications of Biot-Savart's law. In this particular class, we study about only a single application of Biot-Savart's law, that is the magnetic field at the center of a current carrying circular coil or loop. Let's start our class. We will meet till the end of the class and enjoy. Topic is magnetic field at the center of a current carrying coil. Circular loop or coil. Okay, this is the topic. और ये क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है. मींस बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हम ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में. तो यहाँ हम एक कॉइल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले बस हमने कॉइल ड्रॉ कर ली है सर्कुलर. ये इसके एंड्स हैं कॉइल के और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इसका ये सेंटर है ओ जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं. और यूज केस क्या करना? बायोट-सावर्ट लॉ. लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग आपको क्लियर है बायोट-सावर्ट लॉ क्या करता है. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट एट एनी पॉइंट नियर द करंट एलिमेंट. तो सिंपल है बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक करंट एलिमेंट एज्यूम करना होगा. तो इस पूरी कॉइल जिसकी रेडियस हम सपोज कर लेते हैं, द रेडियस इज आर, इसका एक कोई एलिमेंट सपोज करते हैं ए बी नेम से जिसकी लेंथ है डी है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? जितना कि कॉइल में हो रहा है. और इस एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जो कि कॉइल का सेंटर है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं. और ये हमें ऑलरेडी राइट हैंड थंब रूल से क्लियर है. The magnetic field at the center of this coil will be perpendicular to the plane of board. अगर आप पेपर पे बनाएंगे तो it will be perpendicular to the plane of paper. मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ. The magnetic field at the center of coil will be perpendicular to the plane of board according to right hand thumb rule. Okay, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में. अभी सिर्फ इतना कि ये perpendicular होगा बोर्ड के. ठीक है. अब ये जो एलिमेंट हमने सपोज कर लिया है, let me consider a current element of this coil of radius r which is carrying a current I, and the element is AB whose length is dl and it's carrying a current I. It is clear? For according to Biot-Savart's law, the magnetic field due to this current carrying element AB at the center or at the point O which is at a distance r from the element. Okay, if the magnetic field at the center O due to current element AB of length dl if क्या होगा बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, if this is dv, if this is dv then it is given by mu naught upon 4 pi the current, the length of element and sine of angle between the direction of length of this element dl and the radial line
and the position vector of point with respect to the element. Means this angle is in between the r and dl. Vector form में आपको already पता है. So this angle is this angle. Means angle between the length of element and the radial line. कितना है ये? We already know that the radius is always perpendicular to the tangent at any point on the circular coil. तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. सो हियर थीटा इज 90 डिग्री. वी ऑलरेडी नो दैट, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया है. सो दिस इज dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl. Sin theta has the value 1, so this is now dv is magnetic field due to a small element. ये तो एक small element का हो गया. अब हमें करना क्या है? हमें तो पूरी कॉइल का चाहिए, पूरे लूप का चाहिए. तो पूरी लाइट का अब देख रहे हैं, करंट I जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है, डिस्टेंस आर कंप्लीट है, लेंथ इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट का सॉल्व हो रहा है और हमें चाहिए पूरी कॉइल का. मतलब हमें क्या करना होगा? पूरी कॉइल की लेंथ चाहिए होगी. सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो on integrating, so integration of dv is equals to integration of mu naught upon 4 pi I upon r square dl and its limit is 0 to 2 pi r. कितनी लेंथ होगी इसकी? 0 से लेकर 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के इक्वल लेंथ हो जाएगी पूरे सारे एलिमेंट को. या हम अदर वर्ड्स में ये कहें कि इस पूरी कॉइल की लेंथ को हम इक्वल एलिमेंट्स को ऐड करें. ए बी प्लस दूसरा एलिमेंट ले इसी लेंथ का बी सी प्लस सी डी प्लस टी ए, तो इस तरीके से टोटल आ जाएगी, वो इसकी लेंथ आ जाएगी और वो जो हमें इंटीग्रेट से भी मिल जाएगी, इंटीग्रेशन से भी. तो यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होल सर्कुलर कॉइल एंड mu naught upon 4 pi is constant, I is constant and r square is also constant. So all the constants are taken outside from the integration and this is equals to dl 0 to 2 pi r. You know that the integration of dl is L and now according to formula upper limit minus lower limit. तो lower limit तो 0 है, तो lower limit के प्लेस से तो कोई आएगा ही, कुछ आएगा ही नहीं, तो जस्ट क्या आएगी? upper limit. तो this integration dl with limit 0 to 2 pi r is equals to 2 pi r. Already clear? So we can write here mu naught upon 4 pi I upon r square dl integration is 2 pi r. So now we can cancel this. क्या cancel होगा? r square. This r is cancelled, the pi is cancelled, and by this 2 this 4 is cancelled. So we have just mu naught I upon 2r. This is the formula of magnetic field due to a current carrying circular coil at its center. और ये इसमें जो सर्कुलर कॉइल है ये सिर्फ सिंगल टर्म की है, मतलब एक ही वायर को हमने टर्न कर रखा है. अगर इसी रेडियस के ये n टर्म्स होंगे, अगर कॉइल में n टर्म्स हों तो मैं यूज कर सकते हैं फॉर n टर्म्स. तो एक टर्म का करंट I है, n टर्म्स का ni हो जाएगा. मींस it should be multiplied by the number of turns in the coil. So the magnetic field is now mu naught ni upon 2r. So this is the formula of magnetic field at the center of a current carrying circular coil or loop. And this is one application of Biot-Savart law. Okay. So I think now it should be clear. Okay. अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा लास्ट में बात करेंगे डायरेक्शन की. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? ये तो मैंने स्टार्ट से क्लियर कर दिया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. देखिए जो करंट वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, लेकिन किधर? इनवर्ड और आउटवर्ड, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है. तो यहाँ डायग्राम में आप इजीली देखिए, जो करंट मैंने शो किया है इट इज क्लॉकवाइज है. तो अगर हम इस कॉइल को बोर्ड के प्लेन पे अज्यूम कर रहे हैं, मींस करंट का डायरेक्शन जो है, कॉइल को अपनी तरफ से देखिए ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है. ये तो करंट का डायरेक्शन कर्व में है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द थंब, मींस परपेंडिकुलर टू दिस कर्व. ये तो होगा ही होगा, और किधर होगा? अब इसी को ऐसे देखते हैं,
कॉइल पे। ऐसे मार्कर को मैंने पकड़ लिया और कर्ल किधर करना है हमें फिंगर का, करंट के डायरेक्शन में। तो ये देखिए कर्ल है, ये करंट के डायरेक्शन में सो गया। तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट टू द बोर्ड, इनवर्ट टू द बोर्ड। सो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्ट। और इनवर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई द क्रॉस। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस क्रॉस। तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ट। अब इसी कंडीशन में अगर हम दोबारा कॉइल को कंसीडर करें इस तरीके से, ये कॉइल होती और करंट का डायरेक्शन हम इधर लेते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेते तो कर्ल को हमें ऐसे रखना होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो अगर कॉइल में करंट का डायरेक्शन यहीं पे शो करता हूं, एक स्मॉल कॉइल बना लेता हूं और इसमें करंट का डायरेक्शन अगर ये होता और इसका सेंटर ये होता O और ये करंट का डायरेक्शन है I, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, इस तरीके से। इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या हुआ, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और दिस इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड परपेंडिकुलर। तो आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी और इजीली अंडरस्टैंड भी की होगी कि कैसे हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सो बी गुड ऑन दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।